and storing redundant data more efficiently. We can easily extend image compression to video compression by compressing a video frame by frame. This approach is called spatial or interframe coding. Even doing that alone would significantly reduce the file size. But we can actually do much more than that. In a typical video, many consecutive frames tend to be nearly identical. We can make use of this temporal, interframe redundancy to further compress a video. First, let's think of an extreme case where nothing moves in a video. Instead of storing each one of these identical frames, we can simply tell our encoder to keep the first frame and repeat it n times. That will save us a lot of space. Now let's think of a more realistic case where only some parts in the video don't change. This time we can do the same thing but more locally, by dividing the frames into blocks and repeating only the blocks that don't change. What if all blocks change between consecutive frames, but some change a lot and some change a little? Instead of checking whether a block has changed or not, we can search for a given block in the next frame within a neighborhood. This process is called block motion estimation. How does this help with compression? Well, instead of saving every frame, we can save a reference frame and the motion vectors for the blocks. The motion vectors tell us how we should move the blocks to closely match the next frames. This is called motion compensation. Although motion compensation can reduce the difference between two consecutive frames greatly, it is usually not enough by itself to fully create the next frame. So in addition to the motion vectors, we should also save the frame differences between the actual and motion compensated frames. These differences are known as residual frames. When it's time to play this video, the decoder predicts the current frame by taking the previous reference frame, compensating for the motion using the motion vectors, and adding the residual frame. You might ask, couldn't we just save the original frames instead of saving the residual frames? We could, but residual frames have much less information than the full reference frames. Therefore, they are highly compressible. Let's overview the entire process. Traditional video compression algorithms represent a video as a sequence of reference frames followed by residual frames. There are two types of compression done here, intraframe and interframe. In this video, I focused mostly on interframe coding part, which achieves a high compression efficiency by exploiting the similarities between consecutive frames. Intraframe coding, on the other hand, compresses a frame by throwing out visually redundant information within the frame and storing the rest more efficiently. Check out my previous video to learn more about how this is done. The methods I covered here are the very basics that are used by many codecs, including the mainstream H.264 codec, which is also known as MPEG-4 AVC. Modern video codecs, including H.264, H.265, and VP9, use sophisticated methods to balance the level of compression and perceptual image quality without introducing too much computational complexity. Although video compression algorithms we use today are pretty mature, video compression is still an active area of research. Researchers have already been experimenting with machine learning models that have the potential to perform better than today's block-based hybrid encoding standards. It's not easy to beat today's encoding standards since they had decades to mature and to be tuned in many possible ways. I still think that an end-to-end trainable codec will eventually outperform the traditional compression methods by optimizing perceptual image quality while minimizing the file size. That's all for today. I hope you liked it. Is possible. 1920 to 1080, that's almost. You might have heard of codecs. ओके तो ये एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो थी, वीडियो कंप्रेशन वर्क कैसे करता है। तो कल मैंने आपको टू टेक्नोलॉजी बताई थी जो वीडियो कंप्रेशन, एमपेग कंप्रेशन जो अपना बेसिकली है वो यूज में लेता है, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट था अपना स्पेशियल रिडंडेंसी और दूसरा था हमारा इसके अंदर टेम्पोरल रिडंडेंसी, ठीक। तो इसके अंदर भी वही दो चीजों को बताया हुआ है। तो कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है इस वीडियो को हम पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो उसमें ये बताया कि अगर हमारी एक वीडियो है जिसके अंदर की ये हमारा रेजोल्यूशन है इतने बाय इतने का अपना पिक्सल रेजोल्यूशन है पूरा, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें और हर एक लेट सपोज हर एक पिक्सल कैरी कर रहा है 24 बिट्स, तो और इनटू 30 फ्रेम पर सेकंड आ रहे हैं, तो अपना इतना पूरा बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स बन जाते हैं जिनको कि अपने सिस्टम को प्रोसेस करना पड़ेगा ईच सेकेंड।
तो अगर ओवरऑल इस वीडियो की लेंथ को देखें तो उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसको ट्रांसफ़र करना, अपलोड करना, डाउनलोड करना उतना ही ज़्यादा टफ होगा। तो उसके लिए हम वीडियो कंप्रेशन को यूज़ करते हैं ताकि ये जो साइज़ है ये कम हो पाए, और जब वो कम हो जाएगा तो ईजिली उन फाइल्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक। हाँ खुशी, ये इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बाद आपके क्वेरीज पे मैं आऊँगी। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर वीडियो कंप्रेशन कैसे वर्क कर रहा है। तो अपने जो टेक्निक है उसको हम कोडेक कहते हैं। कोडेक मतलब कोडिंग एंड एनकोडिंग, कोडिंग, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, सॉरी, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो एनकोडिंग मतलब कंप्रेशन जब हम करते हैं, तो जब उस टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं दैट इज एनकोडिंग, कि हम कोड कर रहे हैं अपने पूरी फाइल को, कंप्रेस कर रहे हैं। और डिकोडिंग का मतलब हम रिवर्स उसका बना रहे हैं, यानी कि उस फाइल, उस कंप्रेस्ड फाइल से ओरिजिनल फाइल को गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने जो पहले भी एल्गोरिथम पढ़ी थी उसके अंदर उनका नाम क्या था, रन लेंथ एनकोडिंग, हफमैन एनकोडिंग, मतलब वो कंप्रेशन की टेक्निक्स थी अपनी। अब आ जाते हैं हम इसमें नेक्स्ट पार्ट पर। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था जेपीईजी कंप्रेशन के अंदर कि एक पर्टिकुलर पिक्चर को अगर आपको कंप्रेस करना हो तो उसमें से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हटा सकते हैं जिससे कि साइज भी कम हो जाए और अपनी इमेज पे भी कोई इफेक्ट ना आए। तो वो जेपीईजी वाला जो लिंक था वो मैंने शेयर किया था, जिन लोगों ने नहीं देखा, क्लास अटेंड नहीं की थी उस दिन, वो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, नाउ स्पेशल या इंट्रा फ्रेम कोडिंग, टू टेक्निक्स थी कल अपने पास। ठीक है, एक था स्पेशियल और दूसरा था अपने पास टेम्पोरल रिडंडेंसी। स्पेशल के अंदर, अब ये पॉइंट आप ध्यान से देखना कि ये है अपनी इंट्रा फ्रेम कोडिंग। जो मैंने फ्रेम्स के टू टाइप्स या टू टेक्नोलॉजी मैंने बताई थी, फ्रेम्स के टाइप नहीं थे, सॉरी, वो दो टाइप की टेक्नोलॉजी थी फ्रेम के साथ रिलेटेड, एक इंट्रा फ्रेम, एक इंटर फ्रेम बताया था। इंट्रा फ्रेम का मतलब कि जब हम एक फ्रेम को लेकर के उसी के अंदर कुछ चीज कोड कर रहे हैं, उसी को कंप्रेस कर रहे हैं, एक सिंपल एक सिंगल फ्रेम को, तो दैट इज इंट्रा फ्रेम। और जब हम मल्टीपल फ्रेम को कलेक्टिवली कंप्रेस करते हैं, उन सबको एज अ ग्रुप यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर फ्रेम कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अपनी फर्स्ट टेक्निक है इसमें, हाँ, इंट्रा मतलब विद इन एंड एंटर मतलब आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंट्रा फ्रेम अपना टेक्निक है ये अप्लाई होता है स्पेशल रिडंडेंसी में या स्पेशल कोडिंग में। जो अपनी फर्स्ट टाइप की टेक्निक है एमपैक की, दैट इज रिलेटेड टू इंट्रा फ्रेम, मतलब कि इसके अंदर हम जस्ट एक फ्रेम को लेकर उसमें क्या क्या कंप्रेशन हम कर सकते हैं वो कंप्रेस कर देते हैं, उतना चीज कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि लेट सपोज आपके पास क्या है कि कुछ फोटोज हैं, ठीक है, किसी फंक्शन की। अब होता क्या है कि जब हम लोग सपोज हमारे ब्रदर सिस्टर किसी की भी शादी है घर में, तो हम बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। ठीक है, हर एक इवेंट की हमारे पास ढेरों फोटोज होती है, लेकिन जब हम एल्बम बनाते हैं तो उसमें लिमिटेड होती है। 1000 फोटो रखनी है आपको, 1500, ऑलमोस्ट 500 to 1000 आप रखते हो एक एल्बम के अंदर। तब हमको क्या करना पड़ता है, कुछ फोटोज को हटाना पड़ता है वहां पर से। तो तब भी तो क्या कर रहे हो आप, उसको कंप्रेस करने का सोच रहे हो, मतलब हर एक इवेंट की फोटो भी आए और कम भी हो जाए साइज। ठीक है, सपोज आपके पास 2500 फोटो हैं उस पूरे फंक्शन की, शुरू से लेकर के लास्ट तक की, लेकिन आपको बोला है कि 1000 करके दो इन फोटोज को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1500 फोटो को हटाना पड़ेगा। अब वो हटाने में इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि आप एक ही चीज की 10 फोटो रखी हो सपोज आपने, अब उसमें से जो बेस्ट होगी आप वो चूज कर लोगे और बाकियों को हटा दोगे। तो ऐसे कर करके आप 2500 से 1000 फोटोज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर भी एक किस्म से क्या हो रहा है कि हम फोटोज तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, कम कर ही रहे हैं, लेकिन हम हर एक फोटो में भी कुछ कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। वहां पर तो हम ये चीज नहीं कर सकते कि एक फोटो में से 4 लोग हैं तो एक को हटा दो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उससे कुछ फायदा भी नहीं होगा। हाँ, साइज थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर एक पर्टिकुलर फोटो पर भी
कंप्रेशन जितना पॉसिबल है वो अप्लाई कर रहे हैं कि भाई हम फोटो का साइज कितना कम कर सकते हैं कि अच्छी भी लगे और कुछ चीजें गायब भी ना हो, जो ओरिजिनल था उसी के जैसे लगे, ठीक है, वो भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये 4 फोटो एक जैसी हैं, तो इनमें से कौन सी बेस्ट है उसको पिक कर लो, बाकी थ्री को थ्रो कर दो, ठीक है। तो ये कंप्रेशन कुछ कुछ उस सिनेरियो से मैच कर रहा है। तो इंट्रा फ्रेम के अंदर क्या आता है, इंट्रा फ्रेम के अंदर हम एक पर्टिकुलर फोटो या एक पर्टिकुलर फ्रेम को उठा रहे हैं, उस फ्रेम के अंदर हम कितना कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने जेपीईजी में एक इमेज को कंप्रेस किया था, जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पर एक फ्रेम को कंप्रेस कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। सपोज वो था अपना 36 MB का और हमने उसको अब बना दिया 20 MB का। तो ऐसे ही हम अलग अलग फ्रेम्स को जब सब फ्रेम पे अप्लाई करेंगे तो 36 यानी कि 16 बिट्स हमने हर एक फ्रेम की रिड्यूस कर दी। तो ओवरऑल जितने उसमें फ्रेम थे सबके 16 16 16 जब माइनस होंगे तो कलेक्टिवली वो बहुत ज्यादा अमाउंट हम ऑलरेडी कंप्रेस कर चुके होंगे, ठीक है। देन आपका आता है इंटर फ्रेम वाला टेक्निक, जिसके अंदर हम और ज्यादा कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, तभी जाकर के आपकी पूरी जो हैवी वीडियोस होती है वो कंप्रेस हो पाती है। दोनों को यूज करेंगे, ऐसा नहीं इसको किया तो उसको नहीं करेंगे और उसको किया तो इसको नहीं करेंगे, दोनों बल्कि तीनों एक साथ अप्लाई होती है। वो जो अपने लॉसलेस मेथड थे हफमैन एंड ऑल, वो भी इसके अंदर अप्लाई होंगे अभी, ठीक है। वो हम अपनी पीपीटी में देखेंगे कहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो सब ऑल पॉसिबल हम चीजें अप्लाई कर रहे हैं कि भाई अपनी वीडियो जो है वो कंप्रेस हो जाए। तो ये जो है स्पेशल कोडिंग या इंट्रा फ्रेम कोडिंग, इसके अंदर हम वन पर्टिकुलर फ्रेम को लेकर के उसको कंप्रेस करते हैं और स्टेप्स उसके इसके अंदर सारे वही होते हैं जो जेपीजी कंप्रेशन के अंदर थे, ठीक। तो वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम इस वीडियो से बाहर जाएंगे तो सॉरी पीपीटी में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो दिस इज स्पेशल रिडंडेंसी। अब इसी में थोड़ा आगे Frame चलते coding. हैं। Even doing that alone would significantly reduce the file size. But we can actually do much more than that. In a typical video, many consecutive frames tend to be nearly identical. We can make use of this temporal, inter-frame redundancy to further compress a video. First, let's think of an extreme case where nothing moves in a video. अब ये आया अपना दूसरा टाइप कि भाई वहां पर तो हम कंप्रेशन अचीव कर रहे हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हम, ठीक है, क्योंकि हम हर एक फ्रेम को थोड़ा थोड़ा कंप्रेस कर रहे हैं। तो एक सेकंड के अंदर जब 30 फ्रेम्स हैं और 30 को हमने थोड़ा थोड़ा कंप्रेस कर लिया, तो भी तो अपनी 1 घंटे की वीडियो तो कितने सेकंड बनते हैं, उसके अंदर कितने फ्रेम्स हैं, तो इतना ज़्यादा कंप्रेशन हमको नहीं मिल पाएगा। तब एक दूसरी यूजफुल टेक्निक है अपने पास, इंटर फ्रेम कंप्रेशन वाली, ओके। Instead of storing each one of these identical frames, we can simply tell our encoder to keep the first frame and repeat it n times. That will save us a lot of space. Now let's think of a more realistic case where only some parts in the video don't change. This time we can do अब जो आपका इंटर फ्रेम कंप्रेशन होता है वो वन फ्रेम को ही नहीं लेकर के चलता है, बल्कि मोर देन वन फ्रेम को लेकर के चलता है। एक पूरा ग्रुप बनाता है फ्रेम का, 7 फ्रेम 15 फ्रेम इतने फ्रेम लेकर के एक साथ चलता है। अब उन सब फ्रेम को मिलाकर वो कैसे कंप्रेशन अचीव कर सकता है वो देखता है। तो ये क्या देखता है कि यहाँ पर जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि 4 इमेजेस है, यहाँ पर किसी वीडियो के ये 4 फ्रेम्स है, तो इसमें ये ऑलमोस्ट सेम है, सारे एक्शन बैकग्राउंड तो पूरा सेम ही है, बट जो ये पर्सन है उनका जस्ट मुंह थोड़ा सा मूव कर रहा है क्योंकि कुछ बोल रहा है वो, बाकी चीजें सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर कुछ इमेज का ऐसा पार्ट होगा जो चेंज नहीं हो रहा है और कुछ ऐसा पार्ट होगा जो स्लाइटली चेंज हो रहा है, ठीक। तो इसको लेकर के अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो अपनी है वो अप्लाई होती है, दैट इज टेम्पोरल रिडंडेंसी, जिसके अंदर कि हम कुछ पार्ट को, इमेज के कुछ पार्ट को जस्ट एक बार सेव करते हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को, और बाकी टाइम उसको जस्ट रिपीट करवाने का काम करते हैं, ठीक है। रिपीट करवाने का काम करते हैं कि जैसा कि इस फ्रेम में था उसमें भी वैसे ही आ जाए, फ्रेम नंबर 3 में भी ऐसा ही आए, फ्रेम नंबर 4 में भी ऐसा आए। तो इन्फॉर्मेशन को हमने एक बार सेव किया, उसको बार बार यूज किया, तो सेविंग अपना बच गया, स्टोरेज बच गया, साइज कम हो गया, क्योंकि हमको बार बार उतने ही नंबर ऑफ बिट को सेव नहीं करना पड़ रहा है। हमको पता है कि हमको कितनी बार उस चीज को शो करना है और जिस टाइम पर शो करना है उसी टाइम पर वहां पर अप्लाई होगा। बाकी टाइम कंप्रेस्ड फाइल के अंदर वो जस्ट नंबर ऑफ टाइम लिखा होगा, कितनी बार और किस किस फ्रेम पे रिपीट करना है, और कुछ सेव नहीं होगा,
ठीक, तो यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा कंप्रेशन मिल जाता है देन। Do the same thing but more locally by dividing the frames into blocks and repeating only the blocks that don't change. What if all blocks change between consecutive frames, but some change a lot and some change a little? Instead of checking whether a block has changed or not, we can search for a given block in the next frame within a neighborhood. This process is called block motion estimation. How does this help with compression? Well, instead of saving every frame, we can save a reference frame and the motion vectors for the blocks. The motion vectors tell us how we should move the blocks to closely match the next frames. This is called motion compensation. Although motion compensation can reduce the difference between two consecutive frames greatly, it is usually not enough by itself to fully create the next frame. So, in addition to the motion vectors, we should also save the frame differences between the actual and motion compensated frames. These differences are known as residual frames. When it's time to play this video, the decoder predicts the current frame by taking the previous reference frame, compensating for the motion using the motion vectors, and adding the residual frame. You might ask, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि जब हमको ये करना होता है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना जस्ट रिपीट में आए सारे फ्रेम, कुछ कुछ तो उस पर चेंजेस हैं, तो वो कुछ कुछ चेंजेस वो कैसे नोट करता है, वो मोशन वेक्टर से नोट करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर उसके लिए सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं, हर एक ब्लॉक में एक एक ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है वो उस डिफरेंस को नोट कर लेता है, पूरा जो अपनी कंप्रेशन एल्गोरिथम है सब चीजों को नोट करती है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सारे डायरेक्शन नोट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एक होते हैं अपने रेजिडुअल फ्रेम्स, जहां पर कि आपके कलर्स को एलिमिनेट कर दिया, जस्ट मोशंस को रखा है कि कौन सी चीज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि ये वाला फ्रेम एज कंपेयर टू दिस कम मेमोरी लेगा, अपना कम स्पेस लेगा, कम नंबर ऑफ बिट में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इतने कलर वेरिएशन इसमें नहीं है। कलर वेरिएशन को हमने क्या किया, एक जो रेफरेंस फ्रेम है उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में रखा है, उसके पास जितने कलर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसकी पूरी अलाइनमेंट सब कुछ एज इट इज स्टोर कर दिया, उसके बाद के उससे मैचिंग जितने भी फ्रेम हैं उनको रेजिडुअल फ्रेम बना दिया, ठीक है। इसी वीडियो में आगे भी दिखाया हुआ था, ये जैसे, ठीक है, एक रेफरेंस फ्रेम ले लिया, एक रेफरेंस फ्रेम के बाद उसके सारे रेजिडुअल फ्रेम बना दिए जो मैचिंग फ्रेम है, इनमें बस जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट देख ली, उनका मोशन नोट कर लिया, बाकी जब इसको अनकम्प्रेस्ड किया जाएगा, ये कंप्रेशन के टाइम पर इसको ऐसा बनाया हुआ है, जब इसको अनकम्प्रेस किया जाएगा तो इसके सारे कलर्स जो हैं उनको इस पे अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, कलर अप्लाई हो जाएंगे, मोशन ऑलरेडी वहां पर है तो वो एग्जैक्ट फ्रेम आपको मिल जाएगा। बट एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन ये सारी चीजें इस तरह से चेंज हो जाएंगी कि हमको ज्यादा से ज्यादा हाई कंप्रेशन मिल पाए और फाइल का साइज कम से कम हो पाए, ठीक है। तो ये अभी हम फ्रेम के टाइप भी पढ़ेंगे अपने जो वीडियो पीपीटी है उसके अंदर, रेफरेंस फ्रेम जिसको हम बोल रहे हैं और रेजिडुअल फ्रेम जिसको हम बोल रहे हैं, उनके कुछ अपने नाम होते हैं, तो हम आगे वो पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक। अब ये जो है अपना दैट इज इंट्रा फ्रेम एंड दिस इज इंटर फ्रेम। इंट्रा फ्रेम का मतलब ये जो अपने रेफरेंस फ्रेम्स हैं इन पे इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन यूज किया जाता है, और बाकी ये जो है जो कॉम्बिनेशन में वर्क कर रहे हैं पूरे, इनको इंटर फ्रेम टेक्निक से कंप्रेस किया हुआ है, मोर देन वन फ्रेम को इंक्लूड किया हुआ है, तो दिस इज इंटर फ्रेम। और जब एक ही फ्रेम को हम कंप्रेस करते हैं, विद इन दैट फ्रेम हम कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन, which achieves a high compression efficiency by exploiting the similar recessive frame by throwing out visually redundant more efficiently, including the mainstream H.264. ओके, अब इसमें कुछ दिए हुए हैं जो लेटेस्ट चल रहे हैं अपने एमपैक के वर्जन्स, तो ये वीडियो का लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूंगी ग्रुप पे, तो आप इसको डिटेल में अगेन देख लेना, ठीक है, जिन लोगों को भी जरूरत हो। और बाकी हम लोग अब अपनी पीपीटी पे मूव करते हैं, ठीक, हमने थोड़ी बहुत समझ ली है कंप्रेशन की, एमपीजी कंप्रेशन की, आगे उनको इस पीपीटी के थ्रू समझते हैं। तो पहली टेक्निक थी हमारी स्पेशियल रिडंडेंसी, और दूसरी है पहली अपनी टेम्पोरल रिडंडेंसी इस पीपीटी के हिसाब से, और दूसरी है स्पेशियल रिडंडेंसी। तो सबसे पहले स्पेशियल को ले लेते हैं। स्पेशियल मतलब इंट्रा फ्रेम और टेम्पोरल मतलब इंटर फ्रेम। इस चीज को आपको याद कर लेना है, बिकॉज तभी आप इसको एग्जैक्ट एक्सप्लेन कर पाओगे, समझ पाओगे।
स्पेशियल रिडंडेंसी के अंदर आता है इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन, और टेम्पोरल रिडंडेंसी के अंदर हमारा आता है इंटर फ्रेम कंप्रेशन। ठीक है, इसलिए हम इंट्रा फ्रेम को पहले लेकर के चल रहे हैं, बिकॉज ये हम पढ़ चुके हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रेम या एक पर्टिकुलर इमेज को हम कैसे कंप्रेस करते हैं। ठीक, सो इसके पॉइंट अगर हम देखें, स्पेशियल और इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन टेक्स प्लेस ऑन ईच इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ द वीडियो। हर एक इंडिविजुअल फ्रेम पर ये अप्लाई होता है। कंप्रेसिंग द पिक्सल इंफॉर्मेशन एज तो इट वेर अ स्टिल इमेज। जो नंबर ऑफ पिक्सल कैरी कर रही है एक पर्टिकुलर इमेज, उन पिक्सल्स को कैसे कम किया जाए। कम पिक्सल्स को हमें नोट करना पड़े तो अपनी बिट्स कमी हो जाएगी अपने आप। ठीक है, अगर हम पहले 100 पिक्सल्स को उनके बिट में कन्वर्ट कर रहे थे, डेटा में कन्वर्ट कर रहे थे, और कंप्रेशन के बाद अगर हमें 50 पिक्सल्स को ही कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो कौन सी वाली फाइल ज़्यादा लाइट होगी? ऑब्वियसली जिसमें हमने 50 कर दिया पिक्सल्स को। ठीक है, बाकी की 50 पिक्सल्स हम रिज्यूम करेंगे बाद में, जब वो अनकम्प्रेस्ड होगी फाइल। ऐसा नहीं कि 50 की बन जाएगी, वो बाद में डिकोडिंग के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल 100 पिक्सल्स में ही आ जाएगी। लेकिन कंप्रेशन के टाइम पर हमने जो एल्गोरिथम अप्लाई की है वो उसको उस टाइम के लिए 50 का कर देगी। ठीक, अब यहाँ पर जो अपनी स्पेशल रिडंडेंसी रिडक्शन स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं जो जेपीईजी अपना कंप्रेशन था। ठीक, उसके अंदर कलर ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लॉक में डिवाइड करना इमेज को, देन डीसीटी अप्लाई करना, देन क्वांटाइज करना, एंड लास्ट में कोडिंग उस पर करना, एंट्रोफी कोडिंग या हाफमैन जिसको हम बोलते हैं, उसको अप्लाई करना। तो ये सारे स्टेप्स आपके वापस वही रिपीट हो रहे हैं, तो इनको एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है स्पेशल रिडंडेंसी के अंदर RGB टू YUV। जो अपनी RGB फॉर्मेट होता है अपने कंप्यूटर जो फॉलो करता है, ठीक है, उसको किस में चेंज करना? YUV में। ठीक है, यानी कि ब्राइटनेस, क्रोमिनेंस एंड आपका ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कोडेड रेड एंड कोडेड ब्लू में चेंज करना, ताकि आप उसको मोर कंप्रेस कर पाओ। RGB में ही रहेगी इमेज तो इतनी ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएगी, बट उसमें से ब्राइटनेस वाला पार्ट, लाइटनेस एंड ब्राइटनेस वाला पार्ट अलग कर दिया, कोडेड ब्लू कोडेड रेड अलग कर दिया, तब हम उसको ज़्यादा कंप्रेस कर पाते हैं। लेस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर YUV, ह्यूमंस लेस सेंसिटिव टू क्रोमिनेंस। ठीक है, क्यों लिया हुआ है इस वाले अपने कलर फॉर्मेट को? क्योंकि इसके अंदर लेस इंफॉर्मेशन को सेव करना पड़ता है। कलर आपको इसमें भी वापस मिल जाते हैं लास्ट में जाकर के जब आप डिकोड करते हो, बट इसमें इंफॉर्मेशन लेस सेव करनी पड़ती है। दैट्स वाई ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है आपकी इमेज कंप्रेशन के अंदर, कि सबसे पहले तो कलर्स को कम करो, ठीक है, ताकि कम इंफॉर्मेशन को सेव करना पड़े। देन मैक्रो ब्लॉक्स हैं। मैक्रो ब्लॉक्स मतलब वही पूरी पिक्चर को डिवाइड कर दो, किसमें? 8x8 के पिक्सल्स में। देखो इसके अंदर सारे स्टेप्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले RGB को कन्वर्ट किया YUV में, ठीक, ब्राइटनेस एंड उसमें कलर्स में अलग अलग कर दिया दोनों चैनल्स को। अब उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, 8x8 पिक्सल्स का एक पर्टिकुलर ब्लॉक होगा इसके अंदर। अब हर एक ब्लॉक का एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू नोट की जाएगी, ठीक है, कलेक्टिवली जो उसकी वैल्यू बनती है वो सारी नोट की जाती है। उस पे DCT यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके उस वैल्यूज को कुछ इस तरह से कोड कर लिया जाता है, जिसमें उनको फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है कि क्या उसकी ब्राइटनेस लाइटनेस के बेस पर उससे इस तरह की टेबल क्रिएट की जाती है। देन उसके अंदर हो जाता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन के बाद मेजर रिडक्शन होता है, क्वालिटी वगैरह कंट्रोल करके जितना रिडक्शन पॉसिबल होता है वो किया जाता है। देन उसके बाद जिगजैग स्कैन किया जाता है, इस तरह से हम लिखते हैं देन, ठीक है, वो हमने देखा था लास्ट में भी, ठीक है। रन लेंथ कोडिंग वगैरह इसके बाद इस पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। जिगजैग कोडिंग के बाद उसको उस स्ट्रिंग की तरह लिखा जाता है, कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1, और फिर नंबर ऑफ 0 जितने टाइम रिपीट हो रहे हैं उतना, कॉमा, जैसे 0 अगर आपका 14 टाइम रिपीट हुआ कहीं पे तो 0,14 लिख दिया। इस तरह से उसको रन लेंथ एंड बाकी जो कोडिंग है लास्ट में आपकी हफमैन आती है वहां पर, एंट्रोफी कोडिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो सारी कोडिंग्स यहाँ पर अप्लाई होती है। तो ये है अपना इंट्रा फ्रेम एनकोडिंग,
ठीक है। इंट्रा फ्रेम इनकोडिंग का मतलब जस्ट एक इमेज जैसे कंप्रेस होती है वही सारे स्टेप्स आएंगे, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। आप देख ही रहे हो कि सारे स्टेप्स वही इंक्लूडेड हैं। तो इसको समझने के लिए आप वो वीडियो भी वापस फॉलो कर सकते हैं और वो लेक्चर भी जिसमें इसके अंदर ये सब बताया हुआ था वो वापस देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब वीडियो कंप्रेशन के अंदर देखो आपका जेपीईजी भी इंक्लूड हो गया, यानी कि इमेज कंप्रेशन भी इंक्लूड हो गया, ये जो लॉसलेस मेथड हमने पढ़े थे ये भी इंक्लूड हो गए, और अब एडिशनल नेक्स्ट जो अपना टेम्पोरल रिडंडेंसी के अंदर टेक्निक आएगी वो भी होगी। तो मतलब वीडियो कंप्रेशन सारे कंप्रेशंस का मिक्सअप है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वीडियो कंप्रेशन अपने सारे कंप्रेशन का मिक्सअप है, लॉसलेस कंप्रेशन प्लस जेपीजी कंप्रेशन प्लस एमपीजी का अपना अलग सा टेक्निक, तीनों मिल करके वीडियो को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हम नया इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें रिपीटेशन में थी। अब इसके अंदर नेक्स्ट है टेम्पोरल रिडंडेंसी। टेम्पोरल रिडंडेंसी का मतलब इंटर फ्रेम टेक्निक हम यहाँ पर यूज करेंगे। इंटर फ्रेम टेक्निक यानी कि हम मोर देन वन फ्रेम्स को इंक्लूड करेंगे फॉर कंप्रेशन। तो जैसे वहां पर वो जो पर्सन थे वीडियो के, उनका अलग अलग फ्रेम दिख रहा था जहाँ पर उनके बहुत सारी सिमिलैरिटी थी बैकग्राउंड वगैरह, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, न्यूज एंकर है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड वगैरह है वो सब दिख रहा है, बस वो कुछ बोल रहे हैं बीच बीच में, देखो सीरियसली बैठे हैं बिल्कुल और कुछ रीड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारा एरिया बिल्कुल सेम है बैकग्राउंड का, और जिस तरह से बैठे ज्यादा हिल भी नहीं रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें रिपीट होंगी, है ना। तो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, कंप्रेशन के लिए उतना ही अच्छा होगा कि बहुत सारी चीजों को बस एक बार सेव करना है और मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना है, राइट। तो उसमें इसी चीज का बेनिफिट लिया जाता है। Pixels in two video frame that have the same values in the same location. कहाँ पर मिलती है हमको ये रिडंडेंसी? जहाँ पर पिक्सल इन टू वीडियो फ्रेम्स दैट हैव द सेम वैल्यू इन द सेम लोकेशन। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर उस पिक्सल की लोकेशन और वैल्यू, यहाँ की बात करूं तो उसके लोकेशन और वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। दो चीजें होती है ना किसी भी पिक्सल के साथ में, कि उसकी लोकेशन क्या है पूरी स्क्रीन पर, कहाँ पर है वो पिक्सल, और उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि उसको क्या कलर शो करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पिक्सल्स हैं इन चारों इमेजेस के अंदर जिनकी लोकेशन और वैल्यू बिल्कुल सेम है हर फ्रेम में, तो वो जस्ट रिपीट हो रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम रिपीट होते जा रहे हैं, बस उनमें कोई चेंजेस नहीं है, ना लोकेशन में ना वैल्यू में। तो वहां पर हमको टेम्पोरल रिडंडेंसी मिलती है और उसको हम यूज करते हैं फॉर वीडियो कंप्रेशन। Exploiting a temporal redundancy is one of the primary technique in video compression. प्राइमरी टेक्निक है ये, सबसे ज्यादा कंप्रेशन हमको इसी में अचीव होता है। टेक एडवांटेज ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन सक्सेसिव फ्रेम्स, और किसका एडवांटेज ले रही है? सिमिलैरिटीज बिटवीन सक्सेसिव फ्रेम्स। सक्सेसिव मतलब आगे आने वाले जो फ्रेम्स होते हैं उन पे जो सिमिलैरिटी है, जैसे इस फ्रेम के बाद ये फ्रेम आया, इस फ्रेम के बाद ये फ्रेम आया, इसके बाद ये फ्रेम आया, तो ये सक्सेसिव है इस फ्रेम के, ये वाला फ्रेम सक्सेसिव है इस फ्रेम के, ठीक है। तो ये क्या है? रिपीटेशन है, सिमिलैरिटी है काफी इनमें, तो उसका एडवांटेज हम इस टेक्निक के अंदर लेते हैं। अब वीडियो को याद करो जरा, तो उसमें उसने बताया था कि हम हर एक फ्रेम को तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं। अगर हम हर एक फ्रेम को वैसा ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दें तो कंप्रेशन तो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही कंप्रेसिबल फ्रेम्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, अगर आप चेंज कर दो तो। बट कंप्रेस तो हो जाएगा, बट जब उसको रिस्टोर करोगे तो किस फ्रेम को बेस मानोगे? ठीक है, किसी ना किसी फ्रेम को तो बेस मानना पड़ेगा कि इसमें कलर कौन से हैं, उसको देखकर तो कलर आएंगे उस पे। हम कहेंगे अगर रिपीट करना है तो किस चीज को रिपीट करना है, वो चीज भी तो हमारे पास होनी चाहिए। तो यानी कि एक ना एक फ्रेम को हमको ओरिजिनल फॉर्म में रखना पड़ेगा, देन उन बाकी फ्रेम्स को ब्लैक एंड व्हाइट या रिपीटेशन में हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास फ्रेम्स के भी कई टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं मेजरली, तो उनको देखते हैं और उनको यूज करके कंप्रेशन कैसे अचीव करते हैं टेम्पोरल रिडंडेंसी के अंदर, वो आगे देखेंगे। तो टाइप समझना हर एक फ्रेम का अभी कंप्रेशन में कैसे यूज होगा वो आगे देखेंगे। तो फर्स्ट फ्रेम का टाइप है यहाँ पर आई फ्रेम। वीडियो कंप्रेशन फ्रेम्स टाइप
फर्स्ट फ्रेम इज आई फ्रेम. आई फ्रेम इज इंट्रा कोडेड फ्रेम. इसका फुल फॉर्म है इंट्रा कोडेड फ्रेम. ठीक है, अभी इसके इंट्रा या इंटर पार्ट पे मत जाना, जस्ट इसका नाम है आई फ्रेम. और ये होता क्या है, सी. आई पिक्चर्स आर कंप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली सिमिलर टू जेपीजी इमेजेस. ठीक है, अब एक क्वेरी का भी आंसर आ रहा है. एक स्टूडेंट ऋषिराज ने शायद पूछा था कि हर एक फ्रेम पे अप्लाई होता है क्या ये इमेज कंप्रेशन. ठीक है, जो हम जेपीजी बात कर रहे हैं, क्या उस वीडियो की सारी फ्रेम पे अप्लाई होता है? तो आंसर है इसका नो. आंसर है इसका नो, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ जो जेपीजी कंप्रेशन है, इमेज कंप्रेशन है, सिर्फ और सिर्फ आई फ्रेम्स पे अप्लाई होता है. अगर एक वीडियो में सपोज 500 फ्रेम्स हैं, 500 फ्रेम्स में से 3 टाइप के फ्रेम है उसके अंदर, और आई फ्रेम है 150 फ्रेम्स आई फ्रेम है, बाकी और दूसरे टाइप के फ्रेम में, तो आपका ये जो कंप्रेशन होगा जेपीजी कंप्रेशन वो 150 फ्रेम्स पे ही होगा, बाकी के 350 फ्रेम्स पे नहीं होगा. बाकी के फ्रेम किस टाइप के हैं वो आगे देखेंगे हम लोग. अभी के लिए बात कर रहे हैं हम आई फ्रेम्स की. तो ये जो फ्रेम्स है, इंट्रा क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हम इसके अंदर ही अपना जेपीईजी कंप्रेशन यूज करते हैं, जेपीईजी कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, इसलिए ये इंट्रा कोडेड फ्रेम कहलाते हैं. और आई फ्रेम आर कंप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली. ये इंडिपेंडेंटली कंप्रेस होते हैं. इसको कंप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फ्रेम को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर हमको एक फ्रेम को कंप्रेस करना है तो जस्ट उसको उठाया, उसके अंदर जो पिक्सल्स हैं, जो वैल्यूज है, उसके बेस पे उसको कंप्रेस कर दिया. किसी अदर फ्रेम का रेफरेंस हमने नहीं लिया कि उसमें क्या था, इसमें क्या है, कैसा होना चाहिए. नो, इंडिपेंडेंटली कंप्रेस होते हैं. ठीक, बाकी के जो फ्रेम्स है वो इंडिपेंडेंटली कंप्रेस नहीं होंगे, बेस्ड होंगे किसी दूसरे फ्रेम पे. This means they are ideal when the image changes a lot but take up a lot of bits. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंटली कंप्रेस हो सकते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं, उनको किसी दूसरे फ्रेम के पीछे चलने की जरूरत नहीं होती है. वो अपनी वैल्यूज के लिए किसी दूसरे फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या आता है इसका कि ये लॉट ऑफ बिट लेता है, क्योंकि ये जो आपका जेपीजी कंप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हमें नहीं प्रोवाइड कर पाता है. तो अगर सारे फ्रेम आपके वीडियो के आई फ्रेम हो तो कंप्रेशन उतना कम अचीव आपको होगा. लेकिन कब आइडियल होता है ये, जब इमेज चेंजेस अ लॉट, जब आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हो जिसमें कि बहुत ही फ्रिक्वेंट चेंजेस है. जैसे कि मूवीज हम लोग देखते हैं, तो मूवीज में क्या होता है, जैसे हीरो बोल रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ और है, फिर हीरोइन का सीन अगर होता है तो उसकी साइड को कैमरा हो जाएगा तो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा, पर्सन भी चेंज हो गया, देन थर्ड पर्सन बोल रहा है तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, पर्सन भी चेंज हो गया, तो वहाँ पर रिपीटेशन बहुत ज्यादा नहीं होता. तो ऐसे सीन्स के लिए ये जो आई फ्रेम्स होते हैं वो आइडियल होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको दूसरे फ्रेम पे बेस्ड नहीं होना पड़ता है. ठीक, सो इफ यू यूज टू मैनी आई फ्रेम्स यू विल नीड एन ओवरऑल हायर बिट रेट टू कीप द क्वालिटी अप. अगर आप बहुत सारे आई फ्रेम आपकी वीडियो में हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे बिट कैरी करने पड़ेंगे. आपका बिट रेट हाई होना चाहिए, नंबर ऑफ बिट प्रोसेसिंग पावर आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे. iFrame are the least compressible but don't require other video frame to decode. इनको किसी दूसरे फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती डिकोड करने के लिए. ठीक है, जब इसको अनकम्प्रेस्ड करेंगे वीडियो को तो आई फ्रेम अपने आप ही अपने आप को खुद ही उन्होंने कंप्रेस किया था, तो अपने आप को खुद ही वो अनकम्प्रेस्ड भी कर सकते हैं, वो किसी दूसरे फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं होंगे. ठीक है, आगे जब आप पी फ्रेम एंड बी फ्रेम पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि जो बाकी के अपने फ्रेम्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, उनको पहले कोई दूसरा फ्रेम देखना पड़ता है कि हमारी वैल्यू क्या है, उससे एक्सेस करो. तो अगर कोई पर्सन ऐसा है, जैसे एग्जाम में बैठे हो, एक फ्रेंड तो अपना पढ़ के आया है, वो लिख रहा है फटाफट, उसको तुम किसी भी कॉर्नर पे बिठा दो रूम के, इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम करेगा. लेकिन सपोज उसका ही दूसरा फ्रेंड आया है, डिपेंडेंट है उस पर कि भाई तू मुझे बताएगा कि क्या क्या करना है. ठीक है, उसको कुछ नहीं पता, उसने कुछ नहीं पढ़ा, तो उसको तो उसके नियर बाय ही प्लेस ढूंढना पड़ेगा ताकि वो कर पाए अपना काम. तो वो क्या है, डिपेंडेंट. ठीक है, उसको अगर दूर बिठा दिया तो वो तो फेल हो जाएगा. तो इसका मतलब जो बाकी के अपने फ्रेम्स हैं वो डिपेंडेंट फ्रेम्स हैं, बट आई फ्रेम इज होशियार वाला फ्रेम है, अपने आप अपने सारे काम कर लेगा.
ओके, टाइम ओवर हो चुका है आज की क्लास का, तो कल डिस्कस करेंगे उसको आगे।